all to my channel. Welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is rights of sureties. Guys, this is my video 4 on contract of guarantee. Already मैंने 3 videos upload कर दी हैं contract of guarantee पे, in which we have discussed an introduction to the concept of contract of guarantee along with certain features and characteristics of contract of guarantee. Then I've talked about essential elements for a valid contract of guarantee. Then we talked about nature of sureties liability. Guys, all these 3 important concepts are very important for a contract of guarantee. इसको समझने के लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है. If you have not watched it yet, please go and watch each and every video on contract of indemnity and contract of guarantee. It means right from section 124 to 128 of the Indian Contract Act already मैं discuss कर चुकी हूँ. You are free to watch those videos and I suggest before you watch this video, please go and watch those videos because in every upcoming video I will be giving you a bit of reference from my past videos, so it will be easy for me to teach and for you to understand if you are in touch with my videos. And guys, before we proceed, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with rights of sureties. Guys, let me tell you one thing, इसका मैं आपको overview दे देती हूँ. Rights of sureties में हम क्या study करेंगे? Rights of sureties में guys, we study that a surety is a person who stands as a surety basically. जो surety जो गारंटी के तौर पे खड़ा होता है उसको हम surety बोलते हैं contract of guarantee में, जो गारंटी देता है. तो surety के जो rights होते हैं, it is against 3 people. 3 लोगों के against एक surety के rights होते हैं. पहला right is against creditor, second is against principal debtor and third is against co-sureties. Guys, जो हमारा third important right है of a surety against co-sureties, I'll be discussing that in a separate video क्योंकि there are a lot many sections, related sections of the Indian Contract Act जो हमें cover करने होंगे. So this video will become quite cumbersome for you to understand. So हम जो ये topic है ना rights and liabilities of co-sureties, उसी में इसको discuss करेंगे. ये point basically section 146 and 147 Contract Act का है, इसको हम वहाँ पे discuss करेंगे. I'll be making a separate video on rights and liabilities of co-sureties. So co-sureties are nobody, but when a contract of guarantee has more than one surety, उसको हम co-sureties बोलते हैं. So when a contract of guarantee has more than one surety, that is called co-sureties. They are co-sureties to each other and they have certain rights and obligations towards each other. तो इस point को यानी कि एक surety के rights होते हैं against other co-sureties, but liabilities भी होती है at the same time. So इस point को, third important point को हम discuss करेंगे in a separate video, which which will cover section 146 of the Contract Act, 147 and a lot many more sections. So in this particular video today, I'll be discussing rights of surety against creditor and principal debtor. इन दोनों को हम discuss करेंगे. So guys, beginning with an illustration, एक illustration से हम study करते हैं. हम अगर read करेंगे rights of surety against creditor, तो उसमें we'll be discussing section 141 of the Indian Contract Act. Beginning with an illustration, for example guys, हमारे पास क्या है, एक creditor है, एक principal debtor है और एक surety है. So we'll be using CDS word, creditor, debtor and surety. For example, creditor ने क्या किया, debtor को 2000 रुपीज़ दिए, ठीक है. अब creditor ने जब debtor को 2000 रुपीज़ दिए तो उसने एक मॉर्टगेज कर ली, कुछ फर्नीचर या कुछ प्रॉपर्टी जो डेटर की थी, जो डी की प्रॉपर्टी थी, वर्थ 2000 रुपीज़. यानी कि क्रेडिटर ने क्या कहा, क्रेडिटर बोलता है, सी डी को बोलता है कि आई विल बी गिविंग यू 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ का मैं तुम्हें डेट दूंगा, लेकिन यू हैव टू कीप some property of yours as mortgage with me worth 2000 rupees. So debtor ने अपना फर्नीचर जो है वो क्रेडिटर के पास रख दिया 2000 रुपये का, लेकिन all this was done in the presence of a surety and here surety was acting as an additional security. I've told you previous videos में भी कि बहुत बार क्या होता है कि क्रेडिटर ने पैसा दिया डेटर को in the presence of surety. So a valid contract of suretyship or guarantee has entered into, it has come into existence. But कई बार क्या होता है कि क्रेडिटर डेटर को बोलते हैं कि मुझे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी रखो. तो क्या होता है कि डेटर क्या है, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है. तो क्रेडिटर से 2000 रुपये ले जाता है, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख देता है वर्थ 2000 रुपीज़ और एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे वो श्योरिटी को भी खड़ा कर देता है. अब गाइस व्हाट हैपेंड इज, अब आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप होता है ये इन्वोक तभी होता है इंस्टेंटली जैसे ही ये जो डेटर है वो क्या करेगा, डिफॉल्ट करेगा. डेटर हैज़ टू मेक अ डिफॉल्ट ऑन हिज पार्ट. डिफॉल्ट का मतलब होता है कि ही हैज़ टू फेल टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स
कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिटर, आई एम सो सॉरी। तो जो प्रिंसिपल डेटर होता है उसके कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं टुवर्ड्स क्रेडिटर। क्योंकि देखो ऑब्लिगेशंस पे क्या होंगे, क्रेडिटर ने 2000 रुपीज़ दिए तो डेटर को 2000 रुपीज़ वापस करने हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो जब वो 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वापस कर देगा क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर उसकी जो गिरवी रखी प्रॉपर्टी है 2000 रुपीज़ की वो उसको वापस कर देगा। ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। बट गाइज अगर डेटर जो है वो डिफॉल्ट करता है, यानी कि ही फेल्स टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स क्रेडिटर, तो क्या होगा, क्रेडिटर क्या करेगा, फिर श्योरिटी के पास जाता है, श्योरिटी को बोलते हैं कि डेटर हैज़ डिफॉल्टेड, अब आप मुझे पैसा दोगे। बट गाइज समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज, एज इन द इलस्ट्रेशन विच आई हैव गिवन यू, क्रेडिटर क्या करता है, मॉर्टगेज करवा लेता है कुछ प्रॉपर्टी बिफोर हैंड, पहले से ही जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप वाज एंटर्ड इनटू, उसी टाइम पे वो कोई प्रॉपर्टी भी गिरवी रख लेता है। अब गाइज क्रेडिटर हैज रिकोर्स टू अलॉट मेनी रेमेडीज, अब उसके पास 3 रेमेडीज अवेलेबल हैं। या तो वो पहले प्रिंसिपल डेटर से पैसा मांगेगा, या अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा, नहीं पे करेगा, देन ही हैज़ रिकोर्स टू अदर 2 रेमेडीज ऑल्सो, या वो श्योरिटी से पैसा क्लेम कर सकता है, या वो उसकी गिरवी प्रॉपर्टी से, जो उसने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करी है उस प्रॉपर्टी से भी पैसा क्लेम कर सकता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि क्रेडिटर इज फ्री, नोबडी नीदर कोर्ट नॉर श्योरिटी कैन डिक्टेट देयर टर्म्स ऑन क्रेडिटर कि आपको क्या क्या करना है। ही कैन टेक रिकोर्स टू एनी ऑफ द 3 अवेलेबल रेमेडीज अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन, वो उसकी मर्जी रहेगी, वो किसी से भी पैसा क्लेम कर सकता है। बट गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि अगर यहाँ पे क्रेडिटर ने इस इलस्ट्रेशन में सोचा कि 2000 रुपीज़ जो हैं डेटर हैज़ मेड अ डिफॉल्ट, प्रिंसिपल डेटर वॉज प्रिंसिपल, उसका पहले देना बनता था, उसने पैसा नहीं दिया, ही डिफॉल्टेड। As soon as this person defaulted to perform his contractual obligations, contract of guarantee is invoked, वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अगर इंस्टेंसली मान लो क्रेडिटर जो है वो श्योरिटी को बोलते कि मैं आपसे पैसा क्लेम करूँगा, तो श्योरिटी को देना होगा, श्योरिटी कैन नॉट डिनाई, ही हैज़ टू गिव 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर। लेकिन गाइज यहाँ पे जो हमारे श्योरिटी है उसका भी एक राइट है अगेंस्ट क्रेडिटर, वो राइट है राइट टू सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी यहाँ पे क्या था, वो मॉर्टगेज्ड फर्नीचर वर्थ 2000 रुपीज़। मेरे कहने का मतलब है कि अगर क्रेडिटर ने ये सोच लिया कि प्रिंसिपल डेटर हैज़ डिफॉल्टेड, अब वो तो पैसा देगा नहीं, ही नाउ क्रेडिटर हैज़ रिकोर्स टू अदर रेमेडीज, ही कैन टेक रिकोर्स टू एनी ऑफ द 2 अवेलेबल रेमेडीज। वो रेमेडीज क्या है, या वो श्योरिटी से पैसा ले सकता है, या वो मॉर्टगेज गिरवी रखी प्रॉपर्टी से पैसा क्लेम कर सकता है। अगर क्रेडिटर ने ये सोचा कि मैं श्योरिटी से पैसा क्लेम करूँगा, तो यहाँ पे क्रेडिटर को जो गिरवी रखी प्रॉपर्टी है वो श्योरिटी को वापस करनी होगी। गाइस चाहे श्योरिटी को पता है चाहे नहीं पता, इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड, चाहे श्योरिटी को इस चीज़ की नॉलेज है चाहे नहीं, अगर श्योरिटी को नहीं भी पता कि क्रेडिटर के पास कोई ऐसी मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी है बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल डेटर, अगर नहीं भी पता तब भी क्रेडिटर इज ऑब्लिग्ड, ही इज बाउंड बाय लॉ कि उसको पैसा जो है, उसको जो मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी है वो किसको देनी है, श्योरिटी को देनी है। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन 141 को रीड करें तो सेक्शन 141 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हेडिंग क्या है, वो बोलती है श्योरिटी इज राइट। गाइज यहाँ पे श्योरिटी का एक राइट होता है, वो क्या राइट होता है, श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। क्रेडिटर बहुत बार सिक्योरिटी रख लेता है, सिक्योरिटी का मतलब है मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी। कई बार क्रेडिटर प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करवाता है, गिरवी रखवाता है अपने पास, डेटर को बोलते हैं कि पैसा ले जाओ बट कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख दो। तो मैं आपको इलस्ट्रेशन दे चुकी हूँ कि 2000 रुपीज़ ले जाओ लेकिन 2000 वर्थ फर्नीचर मेरे पास रख जाओ। अब यहाँ पे अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज इन्वोक्ड। अब वहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर की मर्जी है, अगर तो वो गाइज, अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से 2000 रुपीज़ क्लेम करेगा तो सीधी सी बात है श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। आई होप यू आर गेटिंग इट कि यहाँ पे 2 सिक्योरिटी है, एक तो वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है और एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे एक श्योरिटी भी खड़ा है। क्रेडिटर की मर्जी है वो किससे पैसा क्लेम करना चाहता है, चाहे वो श्योरिटी से क्लेम करे तो भी श्योरिटी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से क्लेम करे। अगर क्रेडिटर ने सोचा कि मैं मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से पैसा क्लेम करूंगा तो यहाँ पे वो श्योरिटी से क्लेम नहीं कर सकता, श्योरिटी स्टूड डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि क्रेडिटर का जो पैसा बनता था वो उसको ऑलरेडी मिल चुका है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर उसने सोचा कि मैं मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से पैसा क्लेम नहीं करूंगा, मैं श्योरिटी से क्लेम करूंगा, तो यहाँ पे भी श्योरिटी डिनाई नहीं कर सकता, श्योरिटी को एक बार के लिए पैसा देना होगा। बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जो क्रेडिटर है वो अपनी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं कर सकता।
गाइज ये एक प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। इट मीन्स यहाँ पे क्रेडिटर अपने आप को अनजस्टली इन अ रॉन्ग मैनर एनरिच नहीं कर सकता एट द कॉस्ट ऑफ श्योरिटी। उसको फिर वो गिरवी रखी प्रॉपर्टी श्योरिटी को वापस करने, वो ये नहीं सोच सकता कि मैं 2000 यहाँ से ले लेता हूँ श्योरिटी से और 2000 रुपीज़ में उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को बेच के ले लूँगा। सो ही कैन नॉट डू दैट। अगर आप यू हैव रिकोर्स टू अलॉट मेनी रेमेडीज अवेलेबल, आप किसी एक रेमेडी को चूज कर सकते हो। मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से क्लेम करोगे तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली स्टूड डिस्चार्ज, उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर आप उससे क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं श्योरिटी से क्लेम करूँ तो वहाँ से क्लेम करो, श्योरिटी आपको मना नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डिनाई, क्योंकि वो श्योरिटी है, वो मना नहीं कर सकता, बट प्रोवाइडेड आपको वो जो सिक्योरिटी आपने पहले रखी थी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की फॉर्म में प्रिंसिपल डेटर से ली थी, वो आपको फिर श्योरिटी को वापस करनी है, क्योंकि क्रेडिटर कैन नॉट अनजस्टली एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ ईदर श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर। आई होप यू गेटिंग इट। तो आपको क्या करना है, उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को वापस करना है, और जहाँ पे ये ऑब्लिगेशन क्रेडिटर की है कि उसको वापस करना है, वहाँ पे ये श्योरिटी का राइट है। यू नो वेरी वेल कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दे गो हैंड इन हैंड। एक इंसान की ऑब्लिगेशन होती है तो सामने वाले का वो राइट होता है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि क्रेडिटर इज ऑब्लिग्ड, ही इज बाउंड बाय लॉ टू रिटर्न दैट मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी टू द श्योरिटी, इट मीन्स अगर इसकी ऑब्लिगेशन है क्रेडिटर की तो वो अपने आप श्योरिटी का क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। वही हमने डिस्कस किया है। सेक्शन 141 क्लियरली बोलता है कि श्योरिटी का राइट है टू क्लेम एवरी बेनिफिट विच क्रेडिटर हैड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। जो भी बेनिफिट क्रेडिटर के पास था प्रिंसिपल डेटर से लिया हुआ, चाहे श्योरिटी को पता है चाहे नहीं पता, दिस क्रेडिटर पर्सन इज ऑब्लिग्ड, ही इज बाउंड बाय लॉ कि वो वापस करेगा श्योरिटी को, एंड श्योरिटी ही हैज अ लीगल राइट कि वो क्लेम कर सकता है। अगर यहाँ पे क्रेडिटर खुद नहीं वापस करेगा, वो अपने आप को अनजस्टली एनरिच करेगा, तो श्योरिटी उससे मांग सकता है, ही हैज़ अ लीगल राइट टू डू दैट, वो कर सकता है यूजिंग सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट चाहे श्योरिटी को पता है चाहे नहीं पता कि ऐसी कोई भी मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी है जो डिफेंडेंट ने, आई एम सो सॉरी, जो डिफेंडेंट कह लो या डेटर कह लो, जो डेटर ने रखी है, उसको पता है चाहे नहीं पता, श्योरिटी ये फर्क नहीं पड़ता, ये किसकी ऑब्लिगेशन है, क्रेडिटर की ऑब्लिगेशन है कि उसको वापस करनी है, क्योंकि ही कैन नॉट अनजस्टली एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ श्योरिटी। आई होप आप समझ रहे हो कि सेक्शन 141 इज वेरी सिंपल। सेक्शन 141 सिर्फ ये कहता है कि श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी दैट अ क्रेडिटर हैज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, वेदर ही नोज ऑफ दैट एग्जिस्टेंस, वेदर ही नोज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सिक्योरिटी और नॉट, उसको क्लेम वो करने का उसका ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू दैट। So this was the right of surety against creditor। हम दो चीज़ों को इसमें स्टडी करते हैं। पहला हम स्टडी करते हैं right of surety against creditor में, एक चीज़ हम स्टडी करते हैं right to securities। आई होप आपको समझ आ चुका है। राइट टू सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि ही हैज़ अ राइट टू दैट मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी। अगर क्रेडिटर विल नॉट टेक रिकोर्स टू दैट मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी, इंस्टेड वो पैसा श्योरिटी से क्लेम करेगा, देन श्योरिटी वेदर नोज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच सिक्योरिटी और नॉट, ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू क्लेम दैट, क्योंकि creditor cannot unjustly enrich himself at the cost of either surety or principal debtor। I hope you are getting it। दूसरा होता है apart from right to securities, दूसरा जो हमारी सिक्योरिटी का राइट होता है, इट इज राइट टू स्टैंड डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी अगर क्रेडिटर हैज पार्टेड विद द सिक्योरिटी। कई बार गाइस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, श्योरिटी के कंसेंट के बगैर इस इंसान ने फर्नीचर को बेच दिया। क्रेडिटर ने सोचा कि डेटर हैज़ मेड अ डिफॉल्ट, डेटर ने मुझे 2000 रुपीज़ वापस नहीं करे और इंटरेस्ट भी नहीं पे किया, तो क्रेडिटर सोच सकता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को जो इसने गिरवी रखी है मैं इसको बेच के पैसा क्लेम कर लेता हूँ। क्रेडिटर इज़ फ्री टू डू दैट अंडर लॉ। उसने मॉर्टगेज इसीलिए करवाई थी प्रॉपर्टी कि कल को अगर डिफॉल्ट होगा तो मैं बेच के इससे पैसा ले लूँगा। अब क्या किया, क्रेडिटर ने श्योरिटी को बताया नहीं, विदाउट श्योरिटीज कंसेंट उसने क्या किया, ही पार्टेड विद दैट प्रॉपर्टी। वो मार्केट में गया, ही सोल्ड ऑफ, ही डिस्पोज्ड इट ऑफ और पैसा क्लेम कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ही हैज़ पार्टेड विद इट, क्रेडिटर हैज़ पार्टेड विद दैट प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, पार्टेड मतलब ही डिस्पोज्ड इट ऑफ, उसने मार्केट में बेच दिया और पैसा क्लेम कर लिया। या फिर कई बार क्या हो सकता है, सपोज वो फर्नीचर क्रेडिटर के घर पे पड़ा था एंड दैट फर्नीचर कॉट फायर। अब यहाँ पे आप देखो, ना तो प्रिंसिपल डेटर की गलती है क्योंकि उसने तो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करी थी वर्थ 2000 रुपीज़, ना ही यहाँ पे श्योरिटी की गलती है क्योंकि श्योरिटी को तो पता ही नहीं ये गलती किसकी है, क्रेडिटर की है। तो अगर अपनी गलती खुद की है तो नुकसान की भरपाई भी वो खुद ही करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर कई बार ऐसा होता है, क्रेडिटर क्या करता है, ही ईदर वॉलंटरली इंटेंशनली पार्ट्स विद दैट प्रॉपर्टी बाय डिस्पोजिंग इट ऑफ एंड क्लेमिंग मनी, या फिर
कई बार क्या होगा, दैट प्रॉपर्टी हैज़ लॉस्ट, वो गुम जाती है, दैट प्रॉपर्टी माइट हैव कॉट फायर। तो हर एक ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्रेडिटर श्योरिटी से क्लेम नहीं कर सकता। और इसका रीजन क्या है गाइस, क्योंकि श्योरिटी हैज स्टूड डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो ही हैज पार्टेड विद इट वॉलंटरली। क्रेडिटर ने जो पैसा क्लेम करना था वो उसको मिल चुका है, 2000 रुपीज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। वो प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी थी, ही डिस्पोज्ड इट ऑफ, ही क्लेम्ड मनी। इट मीन्स नाउ ही कैन नॉट टेक रिकोर्स टू सेकंड ऑल्टरनेटिव। वो आपको मैं क्लियर कर चुकी हूँ। या फिर बहुत बार ऐसा होगा कि क्रेडिटर की खुद की गलती के कारण द गुड्स माइट हैव बीन लॉस्ट और दे माइट हैव कॉट फायर एज इन दिस केस। तो यहाँ पे भी श्योरिटी की गलती नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि दिस पर्सन श्योरिटी ही हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड। तो गाइज इन द नटशेल अगर मैं इस पॉइंट को समराइज करूँ तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि सेक्शन 141 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर के अगेंस्ट श्योरिटी का एक राइट होता है, और वो राइट क्या होता है कि क्रेडिटर हैज रिकोर्स टू अलॉट मेनी ऑल्टरनेटिव्स। वो किसी भी ऑल्टरनेटिव को चूज कर सकता है, ईदर द मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी और टू क्लेम डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर इफ ही कैन डू दैट, और फ्रॉम श्योरिटी। He has a recourse to allot many remedies available. बट अगर वो किसी एक रेमेडी को चूज करता है तो हम मान लेते हैं कि दूसरी रेमेडी उसके लिए बंद हो जाएगी, द डोर्स ऑफ द अदर रेमेडी वो क्लोज हो जाएंगे। अब उसकी मर्जी वो श्योरिटी से क्लेम कर सकता है या मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता है। अगर उसने श्योरिटी से क्लेम किया तो पहला राइट जो होता है श्योरिटी का वो इन्वोक होगा, दैट इज राइट टू सिक्योरिटीज। अगर आप श्योरिटी से क्लेम करते हो करो, क्योंकि श्योरिटी कैन नॉट डिनाई, उसका काम है कि वो आपको इंडेमनिफाई करेगा, वो आपको पैसा देगा। लेकिन चाहे श्योरिटी को पता है चाहे नहीं पता, अगर आप श्योरिटी से पैसा क्लेम करते हो तो जो आपने सिक्योरिटी रखी थी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी वो आपको वापस करनी है। श्योरिटी हैज अ राइट टू गेट दोज सिक्योरिटीज in the form of mortgaged property back from creditor, क्योंकि creditor cannot unjustly enrich himself at the cost of any of the people, right? दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है कि कई बार क्या होगा, that property might be lost or the creditor or that property might caught fire or creditor has voluntarily and intentionally parted with that property by disposing it of, by selling it। तो वहाँ पे भी हम मान लेंगे कि उसका सेकेंड राइट इन्वोक होगा। वो क्या है कि दिस पर्सन हमारा जो श्योरिटी है, ही हैज़ बिन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। जब आपने उसकी मर्जी के बगैर बेच ही दिया, पैसा क्लेम कर लिया, तो अब आप श्योरिटी के पास नहीं आ सकते, बिकॉज इन अ वे और द अदर आपने अपनी पहली रेमेडी जो अवेलेबल थी उसको यूज़ कर लिया, तो बाकी सारी रेमेडीज आपके लिए उनके डोर्स क्लोज हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ चुका है कि किस तरीके से एक श्योरिटी का राइट होता है टूवर्ड्स क्रेडिटर। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज एंड राइट ऑफ श्योरिटी टू स्टैंड डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस इफ क्रेडिटर ही हैज वॉलंटरली एंड इंटेंशनली पार्टेड with that property or that property might have been lost or caught fire due to this creditor's own negligence. I hope आपको ये पॉइंट्स समझ आ चुके हैं। सेक्शन 141 is very simple. टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। गाइज इसके लिए भी दोनों सेक्शन हम स्टडी करेंगे, सेक्शन 140 एंड 145 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत ईजी है। एक सेक्शन जो है सेक्शन 145, इट इज क्वाइट ईजी। इट टॉक्स अबाउट राइट टू इंडेमनिटी। द वंस हु आर इन कंटिन्यूअस टच विद माई वीडियोज, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाइल वी वर डिस्कसिंग सेक्शन 126 मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हिडन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। हिडन कह लो या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कह लो, तो मैंने आपको बताया था। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, बाद में मैं आपको सेक्शंस बताऊंगी, उनकी वर्डिंग्स बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल विद एन इलस्ट्रेशन हम इसको डिस्कस करते हैं। अब गाइज फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपको ऑलरेडी पता है, विल बी डिस्कसिंग द एसेंस और द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, नथिंग मोर। आपको पता है कि क्या होगा कि अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कोई अमाउंट ऑफ मनी दी, अगर डेटर डिफॉल्ट करता है, इफ दिस पर्सन प्रिंसिपल डेटर ही डिफॉल्टेड, डिफॉल्टेड का मतलब है कि जो गारंटीड डेट होती है, देखो प्रिंसिपल डेट जो होती है उसको हम गारंटीड डेट पे बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ डेट, एक ऐसा कर्जा विच हैज बीन गारंटीड बाय श्योरिटी। सो प्रिंसिपल डेट कह लो, प्रिंसिपल लाइबिलिटी या गारंटीड डेट कह लो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। क्रेडिटर ने गारंटीड डेट किसको दिया, डेटर को दिया, लेकिन डेटर ही डिफॉल्टेड। डिफॉल्टेड मतलब क्या है, ही फेल्ड टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द क्रेडिटर, एंड एज सून एज देयर इज अ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू, वो क्या हो जाएगी, इन्वोक हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग इट कि एज सून एज इस इंसान ने क्या किया, डिफॉल्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप इज इन्वोक्ड।
वो एकदम से स्टार्ट हो जाती है। अब वहाँ पे क्या होगा, फिर श्योरिटी विल एंटर इनटू द पिक्चर एंड ही हैज़ टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन, क्योंकि क्रेडिटर का नुकसान होने नहीं दिया जाता। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर क्रेडिटर को यहाँ से पैसा नहीं मिलता देन ही हैज़ रिकोर्स टू अलॉट मेनी रेमेडीज अवेलेबल। अगर मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हो, अगर इन केस होती है तो आप वहाँ से क्लेम कर सकते हो या आप श्योरिटी से क्लेम कर सकते हो, ये क्रेडिटर की मर्जी है। क्रेडिटर का नुकसान होने नहीं दिया जाता। तो जैसे ही ये इंसान डिफॉल्ट करेगा तो क्रेडिटर ने सपोज श्योरिटी को बोला कि आई विल बी क्लेमिंग दी सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी, 2000 रुपीज़ मैं आपसे क्लेम करना चाहता हूँ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। श्योरिटी कैन नॉट डिनाई, क्योंकि श्योरिटीशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको क्या होगा, पैसा देना होगा। वंस दिस पर्सन क्रेडिटर हैज़ गॉट हिज मनी, इसको पैसा मिल गया गाइस, इसका काम खत्म हो चुका है। क्रेडिटर का तो अब कोई काम ही नहीं है, क्रेडिटर ने पैसा दिया, उसको वापस से मिल गया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, उसका तो प्रॉफिट हुआ। ही विल ड्रॉप आउट, वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि मिजरेबल पोजिशन में कौन है गाइस, वो हमारा श्योरिटी है। श्योरिटी का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, इनफैक्ट उसको तो नुकसान हुआ। ही स्टूड एज अ श्योरिटी फॉर दिस पर्सन। सो डू यू थिंक इस इंसान को डेटर से कुछ क्लेम करने दिया जाएगा? येस फॉर श्योर, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि क्रेडिटर का नुकसान होने नहीं दिया जाता, क्रेडिटर हैज़ रिकोर्स टू अलॉट मेनी रेमेडीज अवेलेबल, किसी भी रेमेडी को वो अवेल करके अपना जो पैसा है वो वापस ले सकता है। उसी तरीके से श्योरिटी की इस मिजरेबल पोजीशन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए श्योरिटी को भी कुछ राइट्स दे रखे हैं गाइस अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। जैसे कि श्योरिटी के पास राइट्स है अगेंस्ट क्रेडिटर, उसी तरीके से श्योरिटी के पास कुछ राइट्स होते हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर ऑल्सो। अब उसका रीज़न तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। बीइंग अ श्योरिटी, उसको कोई पेनल्टी थोड़ी है कि वो श्योरिटी बना है, तो ही हैज़ अलॉट मेनी राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। उसमें पहला बहुत इंपॉर्टेंट राइट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। राइट ऑफ इंडेमनिटी होता है, अब मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल डेटर क्या करेगा, जो श्योरिटी है, श्योरिटी के पास एक राइट होता है कि वो प्रिंसिपल डेटर को कहे कि जो मैंने आपके 2000 रुपीज़ क्रेडिटर को दिए हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो मुझे वापस करो। एंड गाइज अ पॉइंट ऑफ बी नोटेड इज दैट डेटर जो है वो मना नहीं कर सकता। इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना, किसी भी इंसान के नुकसान की भरपाई करना। यहाँ पे नुकसान किसका हुआ, श्योरिटी का नुकसान हुआ, लेकिन किसके कारण हुआ, डेटर के कारण हुआ। तो यहाँ पे डेटर जो है अंडर एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्रॉमिस करता है विदाउट एनी एक्सप्रेसली रिटन वर्ड्स, कोई भी बोलकर या लिखकर नहीं होता। ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है जहाँ पे डेटर इम्प्लाइडली अपने कंडक्ट से श्योरिटी को कहता है कि अगर कल को मैंने डिफॉल्ट किया और आपको मेरी जगह क्रेडिटर को पैसा देना पड़ा तो आई एम हियर फॉर यू, आपके नुकसान की, श्योरिटी के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, डेटर करेगा। तो यहाँ पे गाइज इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड कि कोई स्टिपुलेशन की जरूरत नहीं होती, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये हमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को पढ़ते ही समझ आ जाता है कि देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विच इज फ्लोइंग फ्रॉम डेटर टू द श्योरिटी। डेटर श्योरिटी को वादा करता है। तो सेक्शन 145 क्लियरली बोलता है कि श्योरिटी हैज टू राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर अंडर सेक्शन 140 एंड 145 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दो राइट्स होते हैं श्योरिटी के अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। पहला राइट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इज राइट टू इंडेमनिटी। ही हैज़ अ राइट टू क्लेम इंडेमनिटी। चाहे आपने डेटर ने बोल के लिखा, वैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होता है, जो राइट ऑफ इंडेमनिटी होता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विच इज हिडन और इम्प्लाइड, इट इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब है कि इट इज नॉट टू बी रिटन डाउन। ये इम्प्लाइड होता है कि अगर कल को डिफेंडेंट डिफॉल्ट, अगर कल को डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी उसकी जगह एक बार के लिए तो पे करेगा, लेकिन श्योरिटी की पोजीशन को मिजरेबल नहीं रखा जाएगा। इसके नुकसान की भरपाई करनी होगी डेटर को। ही इज लीगली बाउंड टू डू दैट। ही इज लीगली बाउंड, उसकी ड्यूटी है, ही हैज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन कि उसको श्योरिटी के नुकसान की भरपाई करनी है, क्योंकि वो नुकसान डेटर के कारण हुआ, उसकी डिफॉल्ट के कारण हुआ। अगर वो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है तो श्योरिटी का वो अपने आप क्या बन जाएगा, लीगल राइट बन जाएगा। वही हम राइट्स को स्टडी कर रहे हैं कि श्योरिटी का लीगल राइट है टू क्लेम द मनी फ्रॉम द डेटर। मनी कौन सी, 2000 रुपीज़, जो भी है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे हमने इलस्ट्रेशन में यूज़ किया 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट व्हाटसोएवर, तो वो क्लेम कर सकता है। बट गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जब ये इंसान क्लेम करेगा, जब श्योरिटी डेटर से क्लेम करेगा, तो वो सिर्फ वही अमाउंट क्लेम कर सकता है विच ही हैज़ पेड टू द क्रेडिटर राइटफुली, बट नो अमाउंट, नो सम ऑफ मनी दैट ही हैज़ पेड टू द क्रेडिटर रॉन्गफुली। अभी राइटफुली रॉन्गफुली ये क्या वर्ड्स है मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइज, फॉर एग्जाम्पल हम टाइम बार्ड डेट की बात करते हैं। आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इट इन ग्रेटर डिटेल, क्योंकि टाइम बार्ड डेट में ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको समझा चुकी हूँ। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ डेट विच हैज़ बिन बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन।
3 साल का टाइम पीरियड होता है। 3 साल में क्या होता है कि ना तो क्रेडिटर ने पैसा मांगा, सपोज क्रेडिटर ने, वही इलस्ट्रेशन यूज करते हैं, सपोज क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को पैसा दिया 2000 रुपीज इन द प्रेजेंस ऑफ श्योरिटी, सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एंटर्ड इनटू। 3 साल निकल चुके हैं, ना तो क्रेडिटर ने पैसा क्लेम किया प्रिंसिपल डेटर से और ना ही प्रिंसिपल डेटर ने विद इन 3 ईयर्स ये पैसा दिया। श्योरिटी के शायद से दिमाग से ये बात निकल चुकी हो, बट उसे पता था, ही वेरी वेल न्यू कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने ये इम्प्लाइड है, बोलकर भी नहीं कहा, इट इज इम्प्लाइड कि अगर कल को डिफेंडेंट डिफॉल्ट करेगा तो उसकी जगह पे श्योरिटी को पैसा देना है। व्हाट हैपेंड, इसके 3 साल निकल चुके हैं। अब क्रेडिटर को पता है कि यार 3 साल निकल चुके हैं, दिस लाइबिलिटी या जो ये गारंटीड डेट थी जो 2000 रुपये मैंने दे रखे थे डेटर को, इट हैज़ बिकम नॉन एग्जिस्टेंट इन द आइज ऑफ लॉ। क्योंकि कोर्ट कहेगा कि 3 साल आप क्या कर रहे थे, 3 years इज अ लॉन्ग टाइम माई फ्रेंड्स। सो 3 साल में अगर आप हमारे पास नहीं आए टू एक्सरसाइज योर राइट अगेंस्ट डेटर, तो अब आप नहीं आ सकते। तो बेसिकली कोर्ट कहेगा कि इट इज़ अ टाइम बार्ड डेट, इट इज़ अ डेट ऑफ 2000 रुपीज़ विच हैज़ बिन बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। 3 साल निकल चुके हैं तो क्रेडिटर सोचेगा कि नो आई कैन नॉट टेक रिकोर्स टू कोर्ट, मैं कोर्ट तो नहीं जा सकता बिकॉज दिस डेट हैज़ बिकम बार्ड बाय टाइम। अब मैं क्या करता हूँ, श्योरिटी के पास जाता हूँ, श्योरिटी को बोलता हूँ कि मुझे 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट दो। वैसे तो गाइज अब यहाँ पे अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी नहीं बनती तो श्योरिटी की भी नहीं बनेगी। आई हैव टोल्ड यू सेक्शन 128 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लियरली बोलता है नेचर ऑफ श्योरिटी इज लाइबिलिटी, एंड हमने रीड किया था कि श्योरिटी की लाइबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जहाँ जहाँ प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है वो इक्विवेलेंट लाइबिलिटी श्योरिटी की है, लेकिन जब प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी हैज सीज्ड, वो स्टॉप हो चुकी है, देन एंड देयर श्योरिटी की लाइबिलिटी भी सीज हो जाएगी। इट मीन्स अगर क्रेडिटर के पास प्रिंसिपल डेटर को स्यू करने का अधिकार जो था, वो जो उसका हक था, वो जो उसका राइट था, वो क्योंकि दिस डेट हैज़ बिकम बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो अब क्रेडिटर जो है वो इस इंसान को तो स्यू नहीं कर सकता इन एनी वे। इट मीन्स कहने का मतलब है कि वो अब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि टाइम निकल चुका है। अब अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी नहीं है इसको क्रेडिटर को पैसा देने की क्योंकि टाइम निकल चुका है, तो मतलब श्योरिटी की भी नहीं है। अगर इसकी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी सीज होगी, इट मीन्स श्योरिटी की लाइबिलिटी भी सीज हो गई। लेकिन क्या हुआ, क्रेडिटर ने कहा कि चल ट्राई करके देखते, क्या पता श्योरिटी मुझे पैसा दे दे। वही हुआ, श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसा दिया और श्योरिटी के माइंड से ये चीज़ स्किप हो गई कि दिस डेट हैज़ बिकम बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। 3 साल तो निकल चुके हैं, ये डेट क्या हो चुकी है, नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है, नॉन एग्जिस्टेंट एंड हेंस नॉन एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब गाइस यहाँ पे आप देखो कि श्योरिटी ने जो पैसा क्रेडिटर को दिया था वो पैसा क्या था, इट इज़ अ डेट विच हैज़ बिकम वॉइड। वो डेट ही नहीं है क्योंकि इट हैज़ बिकम नॉन एग्जिस्टेंट एंड हेंस नॉन एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो पैसा श्योरिटी ने दिया 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ही हैज़ पेड दैट मनी रॉन्गफुली। तो जो पैसा श्योरिटी ने रॉन्गफुली दिया होता है क्रेडिटर को, वो पैसा वो क्लेम नहीं कर सकता फ्रॉम द डेटर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वही है कि श्योरिटी कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग। यहाँ पे श्योरिटी की गलती है। श्योरिटी को पता था कि सो एंड सो डेट को, आज से 3 साल पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाज एंटर्ड इनटू, सो ही ऑट टू हैव रिमेंबर्ड इट। उसको याद रखने की जरूरत थी कि 3 साल तो निकल चुके हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की तो कोई गलती नहीं है, अपनी गलती की भरपाई तो उसको खुद ही करनी होगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 3 साल के पहले ये इंसान बोलता, 3 साल के पहले ये इंसान जो डेटर है उसने डिफ़ॉल्ट किया, जैसे ही इसने डिफ़ॉल्ट किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज इन्वोक्ड और क्रेडिटर क्या करेगा, श्योरिटी के पास आएगा बिफोर 3 years। तब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि वो क्रेडिटर को पैसा देगा। और क्योंकि अब इसका नुकसान हुआ इसकी वजह से, डेटर की वजह से, तो वो डेटर से क्लेम करेगा, डेटर अंडर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन ये अमाउंट जो श्योरिटी ने क्रेडिटर को पे करी वो तो अपनी गलती के कारण करी, क्योंकि वो भूल गया कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 3 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, इट हैज़ बिन एंटर्ड। तो इसीलिए जो हमारी डेट थी 2000 रुपीज़ की, इट हैज़ बिकम नॉन एग्जिस्टेंट एंड हेंस नॉन एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे देखो, अगर श्योरिटी उसको 2000 रुपीज़ देगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज एन अमाउंट विच हैज़ मूव्ड फ्रॉम श्योरिटी टू क्रेडिटर इन अ रॉन्गफुल मैनर। तो जब गलत तरीके से आपने उसको पे किया, देन यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग। फिर श्योरिटी जो है वो डेटर से पैसा क्लेम नहीं कर सकता। पैसा वो कब क्लेम करता है, जब वो इसके नुकसान की भरपाई करता है। वो अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए इससे पैसा क्लेम नहीं कर सकता। आई होप यू आर गेटिंग इट गाइज। एक और इलस्ट्रेशन मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर ने डेटर को 2000 रुपीज़ दिए, डेटर ने क्या किया, मना किया कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा विद इन अ ईयर। क्रेडिटर बोलते ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन 3 साल का होता है, अभी भी मेरे पास 2 साल पड़े हैं, मैं पहले श्योरिटी से क्लेम करता हूँ। श्योरिटी ने भी मना कर दिया। बट गाइस अब आप देखो, यहाँ पे 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो श्योरिटी ने एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन दिया,
अगर श्योरिटी एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन देगा कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा फॉर सो एंड सो रीज़न, वो चीज़ ठीक है, तो क्या होगा, सपोज कोई भी आप रीज़न ले लो, कोई भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन ले लो कि क्यों श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसा देने से मना कर दिया। अब क्रेडिटर ने सोचा कि ना तो मेरे को डेटर से पैसा मिल रहा है और श्योरिटी ने भी मुझे मना कर दिया, सो आई विल बी गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years। क्रेडिटर कोर्ट में चले जाता है और कोर्ट में जाने के बाद गाइज अब देखो, जब कोर्ट में पार्टीज के केस फाइल होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंस, एक्स्ट्रा लिटिगेशन कॉस्ट आती है। तो क्रेडिटर ने तो अपना लॉयर हायर किया ही किया, लेकिन श्योरिटी को भी अपने सूट को, अपने केस को डिफेंड करने के लिए किसी काउंसिल की ज़रूरत थी। तो इसने भी क्या किया, लॉयर को हायर किया, उसको भी फी पे करी और कुछ लिटिगेशन कॉस्ट भी इस इंसान की लग गई। अब गाइज यहाँ पे आप देखो कि कोर्ट की जो डिक्री आई वो इसके फेवर में आई, क्रेडिटर के फेवर में आई। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वैलिड थे वो रीजंस कि जब श्योरिटी ने मना किया था पैसा देने से, वो रीजंस वैलिड थे, कोर्ट ने भी कहा। लेकिन डिक्री आने के बाद हमें ये पूरा एनालिसिस करने के बाद ये पता लगता है कि यहाँ पे क्रेडिटर सही है और क्रेडिटर को उसके 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो श्योरिटी का गाइज अब यहाँ पे डबल खर्चा हो गया, 2000 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो अमाउंट बनती थी। लेकिन अपने केस को डिफेंड करने के लिए, लॉयर की फीस देने के लिए, लिटिगेशन कॉस्ट को सहन करने का भी तो खर्चा उसकी पॉकेट से गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या श्योरिटी इस अमाउंट को प्रिंसिपल डेटर से क्लेम कर सकता है? इसीलिए सेक्शन 145 को ब्यूटीफुली बनाया गया। वहाँ पे यही लिखा है कि प्रिंसिपल जो डेटर होता है अंडर एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि ही डिफॉल्टेड, तो अपने नुकसान की भरपाई इसको करनी होगी और इस इंसान को पैसा देना होगा। पर प्रिंसिपल डेटर सिर्फ वही पैसा इस इंसान को देगा, मना वो नहीं कर सकता क्योंकि गलती इसकी है, बट सिर्फ वही अमाउंट प्रिंसिपल डेटर इज ऑब्लिगेड, ही इज बाउंड बाय लॉ ओनली टू गिव दैट अमाउंट टू श्योरिटी विच दिस पर्सन हैज राइटफुली पेड एंड नो सम विच ही हैज पेड रॉन्गफुली। रॉन्गफुली मतलब टाइम बार डेट के आप एग्जाम्पल याद रखोगे, राइटफुली में आप इस इलस्ट्रेशन को याद रखो कि यहाँ पे अब क्या है, देखो 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट तो वो क्लेम करेगा ही करेगा श्योरिटी। क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो अपनी लिटिगेशन कॉस्ट भी जो उसको इनकर हुई क्या वो ले सकता है? तो क्वेश्चन का आंसर है येस। बट अगर उसने सही तरीके से जो है अपने केस को डिफेंड किया, अब यहाँ पे आपको मैं पॉइंट समझाती हूँ। यहाँ पे जो श्योरिटी है राइट, वो क्या करेगा, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट तो वो डेफिनेटली क्लेम करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तो उसने, श्योरिटी ने क्रेडिटर को बिल्कुल सही तरीके से पैसा दिया, क्योंकि वो इस इंसान की नुकसान की भरपाई करी। इस इंसान का नुकसान इसका हुआ और भरपाई ये करेगा क्योंकि इसका डिफॉल्ट है, इसने डिफॉल्ट किया, इसलिए तो श्योरिटी हैज़ टू स्टेप इनटू द पिक्चर और उसको 2000 रुपीज़ देने पड़े। बट जब ये क्वेश्चन आता है लिटिगेशन कॉस्ट का, या ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसके पैसा सपोज 200-300 एक्स्ट्रा रुपीज़ लग गए, अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये इंसान क्लेम कर सकता है? तो सेक्शन 145 क्लियरली बोलते हैं कि हाँ, ये इंसान क्लेम कर सकता है, लेकिन उसी अमाउंट को क्लेम कर सकता है जो उसने सही तरीके से पे करी है, एंड नो अमाउंट ऑफ मनी विच ही हैज़ पेड रॉन्गफुली। रॉन्गफुली मतलब ठीक है, सपोज अगर ये वैसे ही अकड़ के बैठ जाता विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, श्योरिटी बोलता मैं आपको पैसा नहीं पे करूंगा। अब आप यहाँ पे देखो कि वाई यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप। फिर अगर आपको पैसा पे नहीं करना था एज अ श्योरिटी, तो आप क्यों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप में आए? इट मीन्स आप वैसे ही विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन ऑफ मना कर रहे हो, तो वहाँ पे आप पैसा क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइस होता क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले डिफेंडेंट डेटर को डिफॉल्ट करना होता है। ये डिफॉल्ट करेगा तो क्रेडिटर इससे पैसा क्लेम करेगा। अगर तो बिल्कुल सही रीजनेबल रीजंस हैं, जस्टिफाइबल रीजंस हैं श्योरिटी के पास कि मैं पैसा क्यों नहीं दे रहा, फिर तो ठीक है। इट मीन्स आपने पैसा उसको नहीं दिया और आपका पैसा लगा टू डिफेंड योर सूट इन अ राइटफुल मैनर, सही तरीके से, तो वहाँ पे आप पैसा क्लेम करोगे। लेकिन अगर आप वैसे ही श्योरिटी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन वैसे अकड़ के बैठ जाए कि मैं तो पैसा नहीं पे करूँगा कंफर्ट में, कोर्ट कहेगा यू हैव टू पे। आप श्योरिटी खड़े ही क्यों अगर आपको पैसा पे नहीं करना था? तो इट मीन्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी आपको एक बार तो पैसा पे करना होगा। अगर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन ये एरोगेंट हो जाता और ये पैसा पे ना करता और ये इंसान फिर क्रेडिटर कोर्ट में जाता और इसका जो एक्सपेंस होता फिर वो क्लेम नहीं कर सकता था, बिकॉज उसको हम कहेंगे कि दिस इज एन अमाउंट ऑफ मनी जो इसका खर्चा खुद का हुआ विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। इट मीन्स वो मनी इज नॉट मनी विच हैज़ बिन राइटफुली इनकर्ड बाय हिम, इट इज रॉन्गफुली इनकर्ड बाय हिम ड्यू टू हिज ओन एरोगेंस, ड्यू टू हिज ओन नेग्लिजेंस। वो आप पैसा क्लेम नहीं कर सकते। सो गाइज, आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ ब्यूटीफुल बैलेंसिंग हैज़ बिन क्रिएटेड हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जहाँ पे हम बोलते हैं कि ना तो क्रेडिटर का नुकसान होने दिया जाएगा, ना ही श्योरिटी का नुकसान होने दिया जाएगा। लेकिन इस इंसान का जो ये एनरिचिंग बेनिफिट है
कि आप पैसा क्लेम कर सकते हो, वो हद से ज़्यादा भी होना नहीं चाहिए कि आप कोई भी अमाउंट क्लेम करो। यू कैन नॉट क्लेम ईच एंड एवरी अमाउंट। आपको ये इंसान इंडेमनिटी ज़रूर करेगा, लेकिन इंडेमनिटी सिर्फ उस चीज़ की करेगा जो खर्चा आपका सही खर्चा हुआ। फालतू में अगर आप लिटिगेशन पे पैसा लगाते जा रहे हो कि मैंने तो बाद में क्लेम कर ही लेना, यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वहाँ पे फिर आप इस इंसान की पोजीशन को मिजरेबल बना रहे हो। आई होप यू गेटिंग इट। तो सेक्शन 145 सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलता है कि हमारे पास एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है। इम्प्लाइड मीन्स इट इज़ नॉट रिटन, इट इज़ नॉट ऑरल, इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन इटसेल्फ। इट इज़ एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई श्योरिटी, कि आपके नुकसान की मैं भरपाई करूंगा। बट यहाँ पे लिखा है, क्लियरली लिखा है कि ये प्रॉमिस जो प्रिंसिपल डेटर करता है वो सिर्फ उसी अमाउंट के लिए करता है विच दिस पर्सन हैज पेड राइटफुली एंड फॉर नॉट एनी सम विच दिस पर्सन हैज पेड रॉन्गफुली। रॉन्गफुली में आप एरोगेंस हो गए, आपकी खुद की नेग्लिजेंस के कारण आपका एक्स्ट्रा खर्चा लग गया, या आपने टाइम बाद डेट को दे दिया, तो वो आपकी गलती है। यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग, वो अमाउंट ये इंसान पे नहीं करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 141। वो क्या बोलते हैं कि देखो, एज एंड व्हेन दिस पर्सन प्रिंसिपल डेटर ही डिफॉल्टेड, एज एंड व्हेन दिस पर्सन डिफॉल्टेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज इन्वोक्ड। आपको पता है अब क्या होगा, इस इंसान ने क्या किया, 2000 रुपीज़ क्रेडिटर को दे दिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब क्रेडिटर का तो काम ही खत्म, क्रेडिटर को पैसा चाहिए था, उसको मिल गया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सो क्रेडिटर विल स्टेप आउट, क्रेडिटर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर का जो काम था वो हो चुका है। बट गाइज अगैन वही है, यहाँ पे मिजरेबल पोजीशन किसकी है, इस इंसान की है। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये इंसान क्या करेगा, इसके पास एक अधिकार है, एक हक है, लॉ ने इसको एक राइट दिया है कि जो भी आपका खर्चा हुआ वो आप इससे क्लेम करो। तो सेक्शन 145 इंडेमनिटी पे बात करते हैं। सेक्शन 140 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। बिल्कुल सिंपल है, पेमेंट और परफॉर्मेंस। अब गाइज व्हाट डू यू थिंक, श्योरिटी कब पे करेगा, ये श्योरिटी की परफॉर्मेंस कब होगी, जब ये इंसान डिफॉल्ट करेगा। इट इज़ एज सिंपल एज सच, ये एक बेसिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कि ये इंसान कब पे करेगा, या इस इंसान की परफॉर्मेंस ऑफ लाइबिलिटी कब होगी, जब ये इंसान डिफॉल्ट करेगा। तो सेक्शन 140 क्लियरली बोलता है कि अगर ये इंसान डेटर डिफॉल्ट करेगा, एज एंड व्हेन ही डिफॉल्टेड, this person will come into the picture, he will step into the picture because contract of guarantee is invoked then and there। और वहाँ पे इस इंसान को क्या करना होगा, इसको पैसा देना है। अब इसका खर्चा हो चुका है, तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी श्योरिटी डेफिनेटली इस इंसान से क्लेम कर सकता है, बट वही अमाउंट क्लेम करेगा विच दिस पर्सन हैज पेड राइटफुली टू द क्रेडिटर, बट नो एनी अमाउंट विच ही हैज पेड रॉन्गफुली ड्यू टू हिज ओन नेग्लिजेंस, राइट। जो इसने खुद अपनी गलती के कारण पे किया, वो क्लेम वो नहीं कर सकता। बट गाइस सेक्शन 140 में एक और बहुत एक ब्यूटीफुल चीज़ आती है, इट इज़ राइट ऑफ सब्रोगेशन। जैसे हम इसको राइट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं ना, राइट टू क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर, उसी तरीके से सेक्शन 140 को कहा जाता है राइट ऑफ सब्रोगेशन और राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। आप ऑल्टरनेटिवली जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो यू वोंट बी फाइंडिंग दिस वर्ड सब्रोगेशन एनीवेयर इन द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में आपको कहीं पर भी सब्रोगेशन वर्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि इस चीज़ से ही हमने, इसी राइट से हमने इन्फोर किया राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब होता है टू सब्सटीट्यूट समबडी। अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्विटेबल प्रिंसिपल। देखो, जैसे ही इस इंसान ने डिफॉल्ट किया, दिस पर्सन हैज़ टू मेक पेमेंट, बेसिकली दिस पर्सन हैज़ टू मेक पेमेंट और ही हैज़ टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस। क्रेडिटर को पैसा देगा, क्रेडिटर का काम खत्म, ही विल ड्रॉप आउट, वो बाहर निकल जाएगा। अब राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या बोलता है, सेक्शन 140 क्या बोलता है कि दिस पर्सन श्योरिटी वंस गारंटीड डेट हैज़ बिन डिफॉल्टेड। एक चीज़ को ध्यान से देखना, सेक्शन 140 बोलता है कि वंस अ गारंटीड डेट इज नथिंग बट प्रिंसिपल लाइबिलिटी और प्रिंसिपल डेट जो कि इस इंसान से यहाँ पे गई थी, बेनिफिट दैट हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, राइट। तो सेक्शन 140 बोलते हैं कि वंस अ गारंटीड डेट इट हैज़ बीन डिफॉल्टेड, व्हाई इट हैज़ बीन डिफॉल्टेड, वो ड्यू क्यों है, गारंटीड डेट हैज़ बिकम ड्यू, व्हाई इट हैज़ बिकम ड्यू, ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, इज इट। वंस अ गारंटीड डेट इज ड्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 140 बोलते हैं कि वंस अ डेट इट हैज़ बिकम ड्यू, श्योरिटी पर्सन विल बी, राइट, दिस पर्सन विल बी, आप कह लो कि इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर। तो सेक्शन 140 की क्लियर सी वर्डिंग इतनी बोलते हैं कि अगर एक बारी आपकी जो गारंटीड डेट है या प्रिंसिपल लाइबिलिटी है वो ड्यू हो गई, ड्यू क्यों हो गई, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ डिफॉल्टेड, इसने डिफॉल्ट किया तो वो ड्यू हो गया, कर्जा भी ड्यू है, वो पूरा नहीं हुआ। तो अगर ये सिचुएशन अराइज होती है तो वहाँ पे दिस पर्सन श्योरिटी इसको क्या करना होगा, पे करना होगा, एंड आफ्टर पेमेंट or performance of his part of obligation, this person will be invested with all the rights that this creditor had against principal debtor। कहने का मतलब गाइस सिर्फ इतना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कहने का मतलब क्या है
कि इस इंसान ने बेनिफिट दिया इस इंसान को, डेटर को, डेटर ही डिफॉल्टेड। अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो इट मीन्स जो प्रिंसिपल डेट है इट हैज़ बिकम ड्यू। ड्यू कब होती है? जब हम पैसा अभी नहीं लौटाते, इट हैज़ बिकम ड्यू। अब एक बार के लिए क्या हो गया, दैट डेट हैज़ बिकम ड्यू टू हिज डिफॉल्ट। तो दिस पर्सन हैज़ टू मेक पेमेंट और ही हैज़ टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, और इसको वो 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देगा। क्रेडिटर कहेगा मेरा तो काम हो गया, इससे पैसा मिला या इससे मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिटर ही विल ड्रॉप आउट। नाउ दिस पर्सन इज इन अ मिजरेबल पोजीशन, सो दिस पर्सन विल बी इन्वेस्टेड अलॉन्ग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140, दिस पर्सन श्योरिटी विल बी इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट्स दैट दिस क्रेडिटर हैड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। ऑब्वियसली अब क्या होगा, पहले क्रेडिटर का क्या अधिकार था? क्रेडिटर का हक था कि मैं डेटर से पैसा मांगूंगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब उसको कहाँ से मिल गया? श्योरिटी से मिल गया। तो अब ये श्योरिटी का अधिकार बन गया कि मैं अब डेटर से क्लेम करूंगा, क्या क्लेम करूंगा? 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एंड डेटर मना नहीं कर सकता क्योंकि क्या है, एक राइट ऑफ इंडेमनिटी है। आई होप यू गेटिंग इट। तो इसीलिए कहते हैं कि दिस इज अ राइट ऑफ subrogation. Subrogation is nothing but to substitute. This person surety will be substituting principal, he will be substituting creditor. वो creditor को substitute करेगा and this surety will step into the shoes of the creditor, क्योंकि creditor का काम हो चुका है, उसको पैसा मिल चुका है, जहाँ मर्जी से मिला that doesn't matter. क्रेडिटर का काम हो चुका है, he will step out of the picture, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा and once he stepped out, he dropped off. तो क्या होगा, this person surety will subrogate him, he will substitute creditor and he will step into the shoes of the creditor. अब surety यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा and he will automatically be invested with all the rights that this creditor originally had against principal debtor. और उसका अधिकार क्या था? 2000 रुपीज़ क्लेम करना along with interest क्लेम करना। तो सिर्फ इतना ही लिखा है यहाँ पे सेक्शन 140 में। सेक्शन 140 गाइज इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन इक्विटेबल प्रिंसिपल। इक्विटेबल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हर इंसान के साथ क्या हो, न्याय हो। तो अगर इसका नुकसान नहीं होने दिया गया तो इसका भी होने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए श्योरिटी को बहुत सारे राइट्स दिए हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। पहला है राइट ऑफ सब्रोगेशन, सेकंड इज राइट ऑफ इंडेमनिटी। राइट ऑफ इंडेमनिटी इज क्वाइट क्लियर टू यू। राइट ऑफ सब्रोगेशन में भी ऐसा ही होता है कि सिर्फ और सिर्फ सब्रोगेट करना है, श्योरिटी ने क्रेडिटर को सब्सटीट्यूट करना है। क्यों क्रेडिटर को वो क्यों सब्सटीट्यूट करेगा? क्योंकि क्रेडिटर का तो काम हो चुका है, क्रेडिटर हैज ड्रॉप्ड आउट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये श्योरिटी है वो क्या करेगा, क्रेडिटर के शूज में स्टेप इन करेगा, उसकी जगह पे आके खड़ा हो जाएगा। अब पहले जो अधिकार क्रेडिटर के थे वो श्योरिटी के बन चुके हैं और श्योरिटी क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से। वो तो इन एनी वे उसको क्लेम करना ही था, पता ही है कि वो 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट क्लेम करेगा और एनी अदर अमाउंट वो क्लेम कर सकता है इफ ही हैज़ पेड rightfully to the creditor but no amount which he has paid wrongfully maybe due to his own negligence, वो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता। आई होप गाइज आपको समझ आ चुका है। एंड यहाँ पे लिखा ना कि he is invested with। सेक्शन 140 को आप रीड करोगे तो वहाँ लिखा कि when a guaranteed that it has become due to default of principal debtor, then this person surety will be invested with all the rights of the creditor that this person creditor had against principal debtor। invested with का मतलब है गाइज कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। देर इज़ नो स्टिपुलेशन, अगैन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि देर इज़ नो स्टिपुलेशन एनीवेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में इन तीनों पार्टीज को कोई स्टिपुलेशन या कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना होता वाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कि इन द इवेंट ऑफ सो एंड सो अगर ऐसा ऐसा होगा तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नो स्टिपुलेशन इज एडेड, दिस सब्रोगेशन इज ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होती है। एंड दिस राइट ऑफ इंडेमनिटी इज इम्प्लाइड, ये इन्फर्ड है फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। और जो राइट ऑफ सब्रोगेशन होता है वो कब शुरू होगा, जब इस इंसान ने डिफॉल्ट किया। प्रिंसिपल डेटर पहले डिफॉल्ट करेगा, श्योरिटी उसकी जगह पेमेंट करेगा या परफॉर्मेंस जो भी है ऑफ हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस, फिर इसका काम पूरा हो गया, ये बाहर निकल गया। अब दिस पर्सन विल सब्सटीट्यूट, ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर एंड देन ही विल बी एक्सरसाइजिंग ऑल द राइट्स दैट क्रेडिटर ओरिजिनली हैड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। कुछ भी नहीं है ऑफ क्लेमिंग 2000 रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। आई होप यू गेटिंग इट कि आपको समझ आ चुका है। हमने गाइस आज डिस्कस किया राइट्स ऑफ श्योरिटी कि श्योरिटी के राइट्स होते हैं अगेंस्ट 3 डिफरेंट पीपल। पहला होता है अगेंस्ट क्रेडिटर, सेकंड इज अगेंस्ट डेटर, थर्ड इज अगेंस्ट को-श्योरिटीज। को-श्योरिटीज को आप अभी भूल जाओ, विल बी डिस्कसिंग ओनली 2 पॉइंट्स विच इज राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर। वहाँ पे हमने रीड किया, पहला राइट होता है राइट टू सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी का मतलब है मॉर्गेज प्रॉपर्टी। एंड सेकंड राइट इज टू स्टैंड डिस्चार्ज्ड from performing his part of obligation if this person creditor has voluntarily or intentionally parted with the property or that property might have been lost or caught fire due to creditor's own negligence. Are you getting it?
तो यहाँ पे हम सेक्शन 141 डिस्कस करते हैं। फिर हमने रीड किया राइट्स ऑफ श्योरिटीज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, उसमें भी डिस्कस सेक्शन 140 एंड 145 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 140 डील्स विद राइट ऑफ सब्रोगेशन, substitution which is based on an equitable principle, and then we talked about an implied contract of indemnity. I hope you are getting it. So हमने आज 3 sections cover करे, section 140, section 141 and 145 of the Indian Contract Act. So thank you so much guys. In my upcoming videos I'll be coming up with rights and liabilities of co-sureties. उसमें इसका third point हम discuss कर लेंगे. So thank you so much guys. Keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.